Tomorrow I may also go to school. I'll let you know whether I'll be taking the class or not. Have a look at the missing person today. अब मिसिंग पर्सन में जो है क्या बोलते हैं, मिसिंग पर्सन हो चाहे मिसिंग पेट हो या कुछ भी हो मिसिंग, तो वर्ड मिसिंग लिखेंगे बीच में, राइट? एंड देन कम बैक टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉट एवर इज, इफ इट इज एन एनिमल तो डॉग के बारे में बताओगे, इफ इट इज व्हाट a person for that matter. So you'll be writing down the name, age, the color, what he or she was wearing at the time of meaning missing, from where was he or she missing, right? So goes for the cat also or dog also. I am going to give you a question. एक मैं person के बारे में दूंगी और एक मैं question pet के बारे में दूंगी. लिखो. You are the sister of a boy. You are the sister of a boy who has been missing from his home, for the last 2 days. Draft an ad under the missing caption for the local newspaper. Provide necessary details. Do it
And this question is to be answered by Wait-A-Minute. That depends upon you. A day it could be, or ये 100 में को होगा जरूर. अच्छा. तो क्वेश्चन में वो क्वेश्चन लिखो, you are the sister of a boy who has been missing from his home for the last 2 days. Draft an ad. The answer would be given by Nischay. So Nischay, when you're ready, let me know. Nischay, are you ready? और अगर नहीं आ रहा है तो बता दो निश्चय कि मैम आई एम अनेबल टू डू इट. आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू डू इट. If you're able to do it, fine.
Make a box. In middle, write down missing. A boy. उसके नीचे a boy. How old is he? Is it given in the class question? No. So 10 years. You can give his height 4'2", 5'2", whatever it is. Fair complexion. Average build. Now what is he wearing? White t-shirt, blue jeans. Is there any identification mark? A scar or something like that? If it is, write down a mark on the cheek. Then write down missing since when? Since 28th January 2022. कहाँ से? Preet Vihar. Then reward के लिए करो. Finder will be rewarded. Contact. Now sometimes for this kind of thing, nearby police station is also contacted, or you could give a number, phone number, contact, so and so name and phone number you can give, right? You can also give contact your nearest police station. Your contact जो भी पुलिस स्टेशन के अंडर आसपास जो है वो बच्चा जो है क्या बोलते हैं गुमा. Nishcha, can you repeat what I just said? Tanishk. I gave an answer. I presume you could write. You could let me know what exactly did I say. Kavya, are you ready? चल बोल सृष्टि. Missing, young boy named Rahul, height 5 feet 2 inch, average weight 45 kg, 13 years old, GT complexion, has a scar on his right shoulder, wearing blue shirt and black shorts, missing since 28 January, last seen near Lakshminagar colony. If, if, if found, please contact the number. The finder will be generously rewarded. Okay. Let's talk about an animal pet for that matter. I'm going to give a question. Your cat named Tessa is missing. Your cat. कोई भी नाम दे दो cat का. Is missing since 5th August. 5th क्यों क्या बोलते 31st January कर दो. Draft an act under missing column. मैम अगर हमें पेट की ब्रीड्स के बारे में ना पता हो फिर? कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है. ओके मैम. कलर कुलर तो लिख सकते हो ना. बाकी डिस्क्रिप्शन दे दो अगर ब्रीड नहीं पता तो. यस मैम.
पर्शियन कैट हो सकती है, बंगाल कैट भी है, वो छोटी सी होती है। चेशायर कैट होती है एक। सियामीज कैट होती है। हिमालयन कैट भी है, बंगाल कैट भी है, इतनी सारी कैट्स है, अब देख लो क्या लिखनी है। सार्थक, are you done with the question? Let's have the answer then. ओके, उसका फर बता सकते हो कौन से कलर का है? ठीक है, कॉलर, कॉलर भी होता है कैट का, डॉग का, दोनों का कॉलर होता है, राइट? नेम इंस्क्राइब्ड इनसाइड इट, रेड कॉलर एंड ईयर, मतलब आप उसकी ईयर भी बता सकते हो, अ ईयर ओल्ड, राइट? व्हाट एल्स? दैट्स इट। कहाँ से घूमी है ये भी बताना है आपको। कब कब घूमी ये तो बता दिया आपने, कहाँ से घूमी है। फाइन, लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट वन। हमने शायद सेल का जो है एक पार्ट जो है नहीं किया था, तो हम अब कर रहे हैं हाउस होल्ड गुड्स का। पढ़ो देखो, हमने गाड़ी का कर दिया था, कल किया था हमने कार का। नो मैम। मैम कार चलो का ठीक, कार का मैम, बाइक का करा था हमने। कार का हाँ करा था। मैम वैगनआर। कोई बात नहीं, आज हम करेंगे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, जैसे फ्रिज और दैट काइंड ऑफ थिंग, हाउस होल्ड। नाउ बिगिन विद अवेलेबल, क्योंकि आप बेचना चाहते हो, राइट? आइटम ब्रांड जो है उसके बारे में बताओगे, कंडीशंस बताओगे, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन, राइट? If it is a furniture, you have to specify what exactly kind of furniture it is, metal का है, wood का है, right? That kind of thing. Raxine के भी आते हैं, what price is offered and contact address. And now I'm going to give you a question. You're going abroad. You want to sell your LCD TV, AC and refrigerator. अब इनके नाम अपने आप ही प्रोवाइड करना, जैसे रेफ्रिजरेटर है, सैमसंग का हो सकता है, LG का हो सकता है, व्हाटएवर। मैम एसी, रेफ्रिजरेटर एंड LCD TV। मैम तीनों प्रोडक्ट्स के लिए अलग पैराग्राफ्स आएंगे? नहीं नहीं, एक ही में आएगा भैया, एक। ओके मैम। तो ड्राफ्ट एंड ऐड।
You are Udita, 12 BG Lane, Bangalore. And who will give me the answer? You could raise your hand in place of me asking. हम कंप्लीट करके हैंड रेज कर लेंगे। वो ना होता बहुत कम है। चलो अच्छा ठीक है। Okay, Rian, let's have it. Title for sale, then body. For urgent sale, AC of Blue Star, perfectly good condition, in warranty. अर्जेंट, एक मिनट बेटा रुक। तूने Yes, ma'am. लिखा फॉर सेल, फिर दोबारा तूने अर्जेंट सेल लिखा नीचे सेकंड लाइन में भी। Ma'am, अवेलेबल, वांटेड, रिक्वायर्ड में से एक लिखेगा ना बच्चे, क्योंकि तूने सेल तो ऊपर लिख दिया। मैम ऊपर टाइटल चेंज करके ये लिख दूं फॉर अर्जेंट सेल, मैम क्योंकि अब्रॉड जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी सामान निकालना होगा ना। ठीक है चल, फॉर और अर्जेंट नीचे सेल, फिर अवेलेबल ही देगा। यस मैम। अवेलेबल AC of Blue Star, perfectly good condition, in warranty. LCD TV of Sony, also in very good condition, and a Samsung refrigerator, perfectly good condition and in warranty period. Price is negotiable. Contact Udita, phone number, then address. अच्छा,
अब बताओ जरा 11th साइंस, इसने कोई वर्ड जो है बार बार रिपीट किया है? Perfect, very good condition and in warranty. तो इसको हम थोड़ा सा कर्व कर लेते। अवेलेबल टीवी, एलईडी टीवी 32 इंचेस। फिर एसी किसका करेंगे? ब्लू स्टार, चलो इसने बोला ब्लू स्टार 1.5 टन and a Samsung refrigerator 320 liters for immediate sale. अब कंडीशन बतानी है हमने। क्या बोलते हैं, ऑल द आइटम्स आर इन एक्सीलेंट कंडीशन and bought only few months ago. Price negotiable. Owner going abroad, आपने ये भी मेंशन करना है। Interested parties contact उदिता। ठीक है, अब हम आज का हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है उस पे आए थे। Ma'am, बोल। ma'am, please check my advertisement once. Ma'am, ma'am, should I say? एक मिनट, कैसे करेगी? शेयर करेगी, क्या करेगी? मैम अभी सुना देती हूँ आपको। सुना दे। पहले बात ये बता, मैं कौन है ये? मैम सृष्टि बोलोगी। चल। For sale, available LG Smart LCD TV, LG refrigerator and Hitachi AC, all manufactured in 2021 in best condition. LG LCD 43-inch with 4K display, refrigerator with 500-liter capacity, double door, has inbuilt water dispenser and a powerful compressor. Hitachi window AC with power saving mode and inbuilt air purifier. If interested, please contact Udita and contact number. अब तूने उन आइटम्स के नाम दो दो बारी लिखे। जब तू आगे सबसे पहले जो है क्या बोलते हैं आइटम्स के बारे में लिख रही है, वहीं पर डिटेल्स दे दे। जैसे एलईडी टीवी है, तूने जो भी उस टीवी के बारे में लिखा है वो लिख। रेफ्रिजरेटर इनबिल्ट कंप्रेसर ये सो जो भी है वो लिखा तूने, उसमें उसके साथ ही दे दे। एक्सीलेंट कंडीशन में हो तो तूने बाद में बोल ही दिया था, बट तूने आइटम्स जो है रेपिटेटिव है तो सी दैट इट इज नॉट रेपिटेटिव। ठीक है, बाकी ठीक है तेरा। ओके मैम। ये देखो हाउस होल्ड गुड्स है फॉर सेल, मैंने वो डाल रखा है ये। अब हम सिचुएशन वेकेंट का पढ़ेंगे। सिचुएशन वेकेंट यानी कि जॉब के लिए, राइट। जॉब जो है देखो, कोई फर्म जो है अगर एड प्लेस करती है तो रिक्वायर्ड लिखेगी, वांटेड लिखेगी। अगर हमें कुछ चाहिए, मान लीजिए मुझे जो है इंग्लिश ट्यूशन करनी है तो मैं लिखूंगी अवेलेबल इंग्लिश ट्यूटर। इस तरह से करूंगी मैं, अगर मैंने करना है। अगर कोई फर्म वगैरह जो है ऐड देता है तो वो रिक्वायर्ड और वांटेड ही से शुरू करेंगे आप। एनीवन? I'm giving you a question. You are Sneha. Of F46 section sector 9, Rohini.
You are a well qualified music and dance teacher. Draft an ad. Ma'am, what should be the heading in this case? Situation wanted. Okay. Or situation vacant. आज का ये लास्ट क्वेश्चन है. सिचुएशन वांटेड है तो मैम अवेलेबल आना चाहिए ना फिर बॉडी में. हाँ, अवेलेबल ही आएगा बच्चे, आप दे रहे हो तो. अगर कोई फर्म दे रही होती तो रिक्वायर्ड या वांटेड आता. अब एड में हमारा रह गया मैट्रिमोनियल्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स, लॉस्ट एंड फाउंड. अगर कल if I'm not taking, if no, I'm not going to school, I'll be doing these things. Otherwise Monday I'll be taking it. और ये 12th में है ads, so we are done with it then. You can raise your hand if you are ready with it. अभी तक तो none of you have done it. Ma'am, 2 people have raised their hand. एक मिनट, एक सृष्टि है और दूसरा कौन है? मैम तरुण जय. चलिए जी तरुण जी, आप ही बोल लीजिएगा. हो गया मैम, आपका? मैम यस मैम. मैम वांटेड म्यूजिक एंड डांस क्लासेस. मैम सिचुएशन वीकेंड हेडिंग है. वांटेड म्यूजिक एंड डांस क्लासेस बाय वेल सर्टिफाइड स्नेहा मैम. Sneha ma'am is held. Classes are for both boys and girls who are passionate about music and dance. Timings will be 2 to 4 p.m. Fees will be 500 rupees per student. Classes will be held at the given address. F46. Okay, fine. So begin Ma'am? किससे करना था इसको? जब आप दे रहे हो, आपके पास चीज है तो अवेलेबल. ठीक है. अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल डांस टीचर. ठीक है. वेल वर्स्ड इन क्लासिकल, फोक और क्या, विलिंग टू टीच. तूने लिखा बॉयज एंड गर्ल्स. Yes ma'am. टाइम दिया आपने, अब इन इवनिंग या मॉर्निंग जो भी है 4 to 7 या जो भी है, राइट. चार्जेस दे दिए 500 पर मंथ चार्जेस है. डोंट यू थिंक 500 शो कम है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अगर अवेलेबल है तो वो लिखिए, राइट. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स और इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट Sneha. The address is already given. You could also provide a phone number and that's it. आज हम इतना ही करेंगे और बाकी जो रिमेनिंग है वो हम
We'll be doing it on the next day. मैम हमें मैम इसमें मैम स्नेहा जॉब खुद नहीं ढूंढ रही थी? वही तो ढूंढ रही थी भैया। मैम पर तरुण ने तो नहीं, पहले से वादी। मैम वो तो क्लासेस हेल्ड हो रही थी ना, वो तो स्टूडेंट्स को ढूंढ रही थी ना। चाहे कुछ भी हो बेटा, अगर मैंने अभी बताया ना, अपना एग्जांपल दिया, मुझे इंग्लिश की ट्यूशन करनी है, राइट? मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, मुझे इंग्लिश की ट्यूशन लेनी है बच्चों, तो मैं लिखूंगी अवेलेबल, वेल क्वालिफाइड, राइट, रिजल्ट ओरिएंटेड इंग्लिश टीचर, वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल क्वालिफाइड, रिजल्ट ओरिएंटेड, इस तरह से लिखूंगी फॉर क्लासेस 11th to 12th, 11th and 12th। ठीक है, टाइमिंग्स दे दूंगी, चार्जेस दे दूंगी, इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट सो एंड सो, इस तरह से करूंगी। अब ये बताओ किसको नहीं समझ में आई यहाँ पर? Who has not understood a thing, a simple meaning? छोटी सी भी चीज नहीं समझ में आई उसे, ऐसा कोई है यहाँ पर? मैम क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे मैम। वो जॉब ढूंढ रही है या फिर वो स्टूडेंट्स को मतलब बुला रही है? वो जॉब ढूंढ रही है। जॉब ढूंढ रही मतलब अब वो सेल्फ क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयड है, राइट? शी वांट्स मोर पीपल टू कम। आपने देखा नहीं है जब ट्यूशन या कोचिंग सेंटर के आगे जो है क्या बोलते हैं लिखा हुआ रहता है, तो उस तरह से है, जैसे कोचिंग सेंटर के आगे, तो उसी तरह से कोई ऐसा काम करना चाहती है, वो कोच करना चाहती है एक तरह से बच्चों को डांस की। मैम तो फिर ये तो सिचुएशन वेकेंट में नहीं आना चाहिए, तो किसी अपनी एकेडमी की एडवर्टाइज करने के लिए आना चाहिए। नहीं, ये इसको जो है सिचुएशन वेकेंट में ही डालेंगे, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है क्या बोलते हैं 12th के साथ भी ये पंगे हुए। उन्होंने जो है वैसे ऊपर तो आएगा सिचुएशन वांटेड, क्योंकि उसे चाहिए, उस बंदे को चाहिए, ठीक है। पर अगर हम सिचुएशन वेकेंट, क्योंकि अब वांटेड तो अब आया है, इतने सालों से हम वेकेंट के अंदर ही, चाहे वांट हो चाहे कुछ हो, सब वेकेंट के अंदर ही लिख रहे थे, सिचुएशन वेकेंट के अंदर। तो सिचुएशन वेकेंट के अंदर जो है आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि कोई कंपनी जो है उनको अगर कोई चाहिए होता है, वो सिचुएशन वेकेंट के है। अगर आप जो है क्या बोलते हैं, आप ट्यूशन लेना चाहते हो या आप कुछ अपना जो है कि मतलब बच्चों को कुछ करना चाहते हो, तो आप सिचुएशन वेकेंट के अंदर ही लिखोगे। वो जो है सीबीएसई ने उसको हटाया नहीं है सिचुएशन वेकेंट को, अब आ गए सिचुएशन वांटेड, ये सब चीजें। पर अगर हम सिचुएशन वांटेड ना लिख के सिचुएशन वेकेंट लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस समय जो है बच्चों के ना एमसीक्यू में ये मार्क्स गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैम अगर यहाँ पे सिचुएशन वीकेंड या वांटेड के मतलब के अलावा हम कैसे डांस क्लासेस लिख दे तो वो गलत हो जाएगा? उसमें लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी में देना है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो बिल्कुल गलत होगा बच्चे। ओके। इट इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन ना कि यू हैव, जैसे मिसिंग, यू हैव टू व्हाट राइट अंडर मिसिंग कॉलम, तो आप मिसिंग कॉलम में ही लिखेंगे। और इनफैक्ट न्यूज़पेपर में अगर आप खोलो न्यूज़पेपर को, उसमें देखो एजुकेशन की न्यूज क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट्स एक साथ है, राइट? कुछ और की जो है एडवर्टीजमेंट्स कुछ, ये प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन है, तो इसलिए मैं ये सारा कुछ नहीं कर सकती। नहीं तो अगर स्कूल में होता तो आई वुड हैव टोल्ड यू टू गेट द न्यूज़पेपर फ्रॉम योर हाउस, न्यूज काटो उससे, तो क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर से काटो, आपको जो है वो दे देती मैं, क्या बोलते हैं हेड्स दे देती, और आप न्यूज काटते, कम से कम आपको देखते पढ़ते पता करते कि क्या हुआ है, और देखते भी कि किस तरह से अलग अलग वही जो क्या बोलते हैं एड्स है वो किस तरह से लिखी जा सकती है थोड़ा सा अलग होके। पर वी कैन नॉट डू इट, अभी ऑनलाइन है सारा। ऑनलाइन में बस ये है कि स्कूल में जो वीडियोस वगैरह पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन अपनी बनाई हुई हम नहीं दिखा सकते, या किसी बच्चों से बनवाई है, जैसे अ, अभी किसी बच्चे ने देखो थिंग ऑफ ब्यूटी की बनाई थी, टाइम है मेरे पास, हो गया टाइम। उसने इतनी ब्यूटीफुल, रजत करके 12th में एक बच्चा है, ही हैज मेड इट वेरी नाइसली। उसने बहुत सारे एलिमेंट्स जो है क्या बोलते बाहर से भी लिए हैं, तो एनडीमियन एक करके जो है बुक है, उसमें से जो है क्या क्या प्रोसेस थे ये सारा कुछ लिया हुआ है। तो
वास्ट है अगर इंग्लिश को अच्छी तरह से वो करो तो। हम तो यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक करते हैं कि थोड़ा बहुत करवा के आपको अच्छे नंबर आए आपके बोर्ड में। So I'll be leaving you off. So if I'm taking a class tomorrow, so I'll write it down. If I'm not taking, that to also be written, right? Let's see. Hopefully ना ही जाना पड़े, ठंड में तो मजा है। Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. अभी तो थोड़ा सा ही बच्चे आएंगे, कल तक चलेगा ना ये? यस मैम। मैम बोलो। मैम एंट्रोपी के बाद से सारा आ रहा है। हाँ, जस्ट ए मिनट रुक जा। हाँ, क्या बोल रहे हो? एंट्रोपी के बाद? एंट्रोपी से और उसके बाद का जो है मैम वो सब है सिलेबस में। सब है? अच्छा, Yes, कोई बोल रहे थे जो इक्विलिब्रियम वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब कोई टॉपिक काटा नहीं है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। बॉर्न हेबर सर्किल हमने देख लिया। वी हैव डिस्कस द स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया इज if the reaction is exothermic, it will most of the time we observe it is spontaneous reaction. Now exothermic and endothermic I have discussed. Next, the thing is that we will discuss the entropy and the spontaneity. Okay, entropy क्या है और what is the relation between the entropy and एक बार चेक करो ना रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छा, एंट्रोपी एंड द स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। देख सिंपल सी लैंग्वेज में है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज अ रैंडमनेस। एंट्रोपी मींस चलो यहाँ स्क्रीन शेयर नहीं है। ओ माय गॉड, स्क्रीन शेयर नहीं है। उफ, इधर से उधर करते हैं। Okay, entropy and spontaneity. Entropy क्या है? Which drives the spontaneous process to give a direction. Such a case in which delta H is 0, there is no changes in enthalpy, but इस टाइप का आर्गुमेंटिव हुआ था जब सिचुएशन को हम मतलब एस्टेब्लिश किया था जिससे इसमें डेल्टा H is equal to 0, then still this is a spontaneous. Let us consider the diffusion of the two gases which are mixing into one another in a closed container.
इन आइसोलेटेड फॉर्म, ठीक है, डिफ्यूजन हो रहा है किसका, 2 गैसेस का इन अ क्लोज्ड कंटेनर इन अ आइसोलेटेड फॉर्म from the isolated system, isolated from the surroundings. तो देखो 2 गैस A and B, they are represented by the dots. the दोनों जब मिक्स, ये क्या हो रहा है भाई, तो दिस इस टाइप का जो मिक्सिंग हो रहा है, दोनों अलग अलग था, हमने इसको हटा दिया एंड नाउ दे मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, सेपरेटेड था. So in this case, the gases begin to diffuse into each other, and after a period, the diffusion. तो देखो spontaneously mix हुआ, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने just एक partition जो था उसको हमने withdraw किया, and the diffusion will be completed. तो ये क्या होता है, this I'm coming. तो and before the partition, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. Now I am coming to the point. We introduce another thermodynamic function, entropy, denoted as S. किससे डिनोट किया जाता है, S. Okay. This means is disorder. Simply things that disorder or chaotic situation. तुम देखना, we prefer the disorderness. I don't know, मतलब जैसे सपोज देखो क्लास में अगर टीचर्स ना रहेंगे तो बच्चे ऐसे बिल्कुल इधर से उधर घूम रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है, कोई इस बेंच से उस बेंच में जा रहा है. अभी ये कहानी भी 2 साल हो गया, नहीं हो रहा है, सही बात है. मतलब अभी लग रहा है जैसे कहानी हो गया ना, सही में वेरी बैड. जो भी हो, तो उस टाइम जो एक डिस्टर्बेंस, एक कैओटिक सिचुएशन, डिसऑर्डर रहता है, अगर क्लास में कोई टीचर्स नहीं रहता है, तो दैट यू कैन से एवरीवन एंजॉय. कौन स्टूडेंट होता है जो उसको अच्छा नहीं लगता. जब टीचर्स आ जाता है, सब चलो नहीं बैठ जाओ अपने अपने सीट में. कभी कभी तुम सीट चेंज करते हो तो फिर नहीं, अपने सीट में पार्टनर के साथ बैठो, तो वो जो ऑब्वियसली यू डोंट लाइक. तो ये जो डिसऑर्डर व कैओटिक सिचुएशन, मतलब फ्रीडम, यू कैन से फ्रीडम, एवरीवन एंजॉय फ्रीडम. तो अगर तुम मॉलिक्यूल को भी छोड़ दोगे, जो भाई चल तुम उनको एक जगह पे हमने एक बाउंड्री देके बाइंड करके रखा था, उसका बाउंड्री हमने हटा दिया. नाउ मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन अ लार्जर स्पेस, दे आर फ्री टू मूव इन अ बिगर स्पेस. तो दैट फ्रीडम दे विल एंजॉय. अगर टीचर्स नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट्स कैन मूव फ्रीली विद इन द क्लासरूम, दैट फ्रीडम दे एंजॉय. सो इस टाइप का फ्रीडम बोलो, डिसऑर्डर बोलो, कैओटिक सिचुएशन बोलो, this is one of the important criteria for the spontaneous change. तो उस टाइप के, and this chaotic or disorderness, that is described by the terms entropy. The above mentioned disorder is a manifestation of the entropy. To form a mental picture, one can think entropy as a measure of, क्या है भाई entropy? What is the entropy? Entropy is a measure of the degree of the randomness or disorder in a system. This is the definition of the entropy. एंट्रोपी क्या है? मेजर करता है. क्या मेजर करता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ फ्रीडम. मॉलिक्यूल्स कितना रैंडम घूम रहा है, कितना डिसऑर्डर है. जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी हाई होगा. ग्रेटर द डिसऑर्डर एंड हायर विल बी द एंट्रोपी. सो एंट्रोपी सबको समझ में आ गया. तो एज फार एज द केमिकल रिएक्शन इज कंसर्न, द एंट्रोपी को हम कैसे देखेंगे? हम ऐसे देखेंगे, द रीअरेंज इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन. अगर हम देखेंगे तो जो प्रोडक्ट बन रहा है और जो रिएक्टेंट है उसमें हम देखेंगे जे कहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा फ्रीली मूव कर रहा है, कहाँ पे, मतलब प्रोडक्ट में अगर ज्यादा गैसेस होंगे. सपोज तुम एक सिंपल सोचो, तुमने आइस को तुमने वाटर में कन्वर्ट किया, आइस को तुम वाटर वेपर में कन्वर्ट किया, तो कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रैंडमनेस ज्यादा होगा, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा.
ऑब्वियसली गैसियस फॉर्म में व लिक्विड फॉर्म में, बिकॉज मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, दे विल बी मूव रैंडमली। तो एंट्रोपी कहाँ पे ज्यादा होगा? एंट्रोपी भी अगर तुम कंपेयर करो आइस, वाटर एंड गैस, वाटर वेपर, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी हम देखेंगे गैसेस में, मीडियम होगा वाटर में, और मिनिमम होगा सॉलिड में, जहाँ पे अरेंज्ड है। अरेंज कैसे? बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे आर प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक पोजीशन। सो दिस केमिकल, ये तो फिजिकल चेंज में मैंने बताया। केमिकल चेंज में क्या है? which can be attributed to the rearrangement of the atoms and ions from one pattern in the reactant to the another in the product. If the structure of the product is very much disordered than that of the reactant, then the resultant entropy will increase. So reactant के respect में product को हम अगर हम देखेंगे तो उसमें अगर ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा तो देन वी कैन से एंट्रोपी इंक्रीज किया गया है। The change in the entropy accompanying a chemical reaction may be estimated by qualitatively by considering the structure of the species taking part in the reaction. Decrease of regularity in the structures would means increase in the entropy. अच्छे से देखो, this is decrease in the regularity in the structure means increase in the entropy. For example, इन्होंने लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड से, जैसे मैंने डिस्कस किया एंट्रोपी चेंज होगा। अभी मैं एक पर्टिकुलर रिएक्शंस अगर तुम्हें मैं बोलूंगी, सपोज तुमने लिया था PCl5, PCl5 को तुमने हीट किया, PCl5 वो गैस था, पर PCl5 को हीट किया उन्होंने, ब्रेक हो करके Cl2 एंड PCl3 में कन्वर्ट हुआ। तो देखो, वन मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग इनटू द टू मॉलिक्यूल्स, ए भी गैसेस से, PCl5 भी गैसेस से, गैसियस फॉर्म में लिया था, और हमारा PCl3 एंड प्रोडक्ट जो है एंड Cl2 क्लोरीन एंड PCl3 दोनों ही गैसेस है। तो कहाँ पे रैंडमनेस बढ़ेगा? नेचुरली अगर वन मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो उनका डबल रैंडमनेस बढ़ जाएगा। सो दिस विल बी इन दैट केस वी कैन से yes, the entropy has been increased. So entropy, I think तुम्हें समझ में आ गया। One way to calculate the entropy, the calculate the degree of the disorder or chaotic distribution of energy among the molecule would be through the statistical method. वो तो होता ही है, statistical method से हम करते हैं। अदर वे कैसे हम करेंगे? द प्रोसेस टू द हीट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस व्हिच वुड मेक द एंट्रोपी इन अ थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट। एक होता है स्टैटिस्टिक्स, जैसे प्लेग्राउंड में इतने लोग हैं, उसका एक प्रोबेबिलिटी करके तुम बता सकते हो जो इसमें सपोज मैच शुरू होने से पहले सब लोग घूम रहा है, बैठ रहा है, उसमें एक प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमनेस क्या होगा। मैच खत्म हो गया, उसके बाद जब लोग मूव करके निकल रहा है प्लेग्राउंड से, उस टाइम क्या है रैंडमनेस, वो तुम प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में फाइंड। बट रिएक्शन में हम क्या करेंगे? हमें पता है जितना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा हीट सप्लाई किया जाएगा, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ेंगे, उतना उनका मूवमेंट बढ़ेगा, उतना उनका एंट्रोपी बढ़ेंगे। सो हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस वुड मेक अ एंट्रोपी इन अ थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट। तो थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट में हीट के साथ रिलेशन है एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी लाइक एनी अदर थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट सच एज internal energy and enthalpy is a state function. So entropy अभी हमें और एक state function हमें मिला है, that is a entropy and independence of path. Next is देखो, when heat is added to the system, if the increases molecular motion, जो अभी मैंने डिस्कस किया, causing the increase the randomness naturally, then in the system, thus the Q is randomizing the influence of the system. Naturally, कि तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, उसका मूवमेंट बढ़ रहा है, उसका रैंडमनेस बढ़ रहा है, उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। सो
randomizing के लिए heat has a randomizing influence, and so now we are coming a system at a higher temperature. अच्छे से देखो, मैंने जहाँ पे बुक में मार्क कर रही हूँ, हो सके तो मार्क कर लेना, क्योंकि क्या होता है बाद में जब तुम पढ़ते हो ना, तुम्हारा बुक में कोई मार्क वर्क नहीं होता, तो तुम्हें उसी पार्ट में कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लाइन हाईलाइटेड है, कौन सा लाइन को हमें ज्यादा फोकस करना, तुम्हें यही नहीं पता। फिर जब तुम पढ़ते शुरू करते हो एक टॉपिक को, ऐसे पढ़ते हो, फिर तो हाईलाइटेड होने से उसी जगह पे आंखें जाता है, अच्छा ये दीज आर द मेन पॉइंट, तो एक टॉपिक को क्विकली कवर कर सकते हो। A system at a higher temperature has greater randomness naturally, and then the lower temperature. So temperature is a measure. So temperature is a measure of the average chaotic motion of the particles in the system. So अभी उसी के हिसाब से अभी हम देखेंगे कैसे एंट्रोपी को we are going to calculate. Heat is added to the system at a lower temperature causes greater randomness than when the same quantity of heat is added at the higher temperature. इस वाला सब चीज का समझ में आया है? तुमने कुछ हीट को सप्लाई किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सपोज कोई एक सिस्टम ऑलरेडी 40 डिग्री सेल्सियस में थे, तुमने उसमें कुछ हीट सप्लाई किया, और कोई एक सिस्टम 70 डिग्री सेल्सियस में थे, उसमें भी तुमने सेम हीट अप्लाई किया है। तो तुम बताओ कहाँ पे तुम्हारा रैंडमनेस बढ़ेंगे ज्यादा? एक दो सिस्टम है, एक में ऑलरेडी 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, एक में 70 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, तुमने दोनों जगह पे 500 किलोजूल हीट को सप्लाई किया है, वेयर द रैंडमनेस विल बी मोर। हम 70 डिग्री सेल्सियस वाले पे, हाँ हम 70 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे टेम्परेचर है 70 डिग्री में। क्यों 70 डिग्री में क्यों होगा मैम? वो मैम लिखा हुआ है टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज। मैम chaotic मोशन बढ़ जाता है उससे, मैम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहाँ पे। Heat is added to a system at a lower temperature causes a greater randomness than when a same quantity of heat is added to a higher temperature. This suggests that entropy changes in an inverse proportional to the temperature. This is the relation. Temperature is a measure of the average measure, but temperature कैसे measure कर रहा है ये अच्छे से देखो. This is very important thing. तुम्हारे पास दो सिस्टम है, एक में 40 डिग्री से 70 डिग्री, तुमने दोनों में सेम हीट किया है। इम्प्रूवमेंट जो होगा, ज्यादा हम जो इम्प्रूवमेंट देखेंगे वो लोअर टेम्परेचर में जो मॉलिक्यूल्स था ना, उसका स्पीड कम था, उसका स्पीड वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके उनका मूवमेंट ज्यादा दिखेगा rather देन जो ऑलरेडी हायर टेम्परेचर में था। ठीक है, सो इसीलिए देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहा है that entropy changes is inversely proportional to the temperature. So now what is the relation? Relation देखो अच्छे से, delta Q is equal to Q reversible by T. तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में अगर हम टेम्परेचर को फिक्स रखेंगे तो उसमें कितना हीट हमने सप्लाई किया, दैट इज proportional to the change of the entropy. The total entropy change for the system and the surroundings of a spontaneous process is given by S total. क्या होगा? सिस्टम में कितने एंट्रोपी है एंड सराउंडिंग्स में कितना एंट्रोपी है, दोनों मिला के होगा टोटल एंट्रोपी, एंड दिस एंट्रोपी इज ग्रेटर देन जीरो. When a system is in equilibrium, the entropy is maximum
and the changes of the entropy is zero. Naturally system zero होगा, तो when a system is in equilibrium and the entropy alone is maximum and the change of entropy, दोनों अलग spontaneous change of the process. तो दोनों इंडिविजुअली कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बट दोनों का मिला जुला के एक ओवरऑल कंट्रोल होता है. प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे क्या नहीं होगा. So a new thermodynamic functions give free energy or gives energy or give function has been introduced, which is G is equal to H minus T delta S. This is the expression, but gives free and change of the give free energy जो है, अच्छा, del G is an extensive property and as a state function. Extensive property का क्या मतलब है? What do you mean by extensive property? अमाउंट पे डिपेंड करता है ना नहीं है? करता है. The change of gives free energy जो है, this is very very important. So delta G system is equal to delta H system minus T delta S system. मतलब इसको हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है. मोटा मोटा जो है दिस इज आवर एक्सप्रेशन, इसको आ जाते हैं इतना ज्यादा ना करके. तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. दिस रिएक्शन, दिस इक्वेशन decide whether a reaction will be spontaneous or not spontaneous. जिसमें देखो we have introduced a new term that is gives energy change. Gives energy change का मतलब क्या है? Change in enthalpy minus temperature into the entropy. Okay. Now तो give free energy अभी हम देखेंगे, अगर नेगेटिव होगा, अच्छे से समझो, टोटल गिव फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. ओके, क्यों होगा? ओके मैं हम देखेंगे. अच्छा, और क्या है? कोई रिएक्शन डेल्टा जी मेजर करके वी कैन से अ रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक और सॉरी रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. ओके, so delta G is a measure of spontaneity, you can say. इक्विलिब्रियम प्रोसेस में हम देखेंगे डेल्टा जी जीरो है, ठीक है. और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी का 3 वैल्यू होता है. डेल्टा जी का 3 वैल्यू होगा. वन इज प्लस, प्लस मतलब डेल्टा जी प्लस वैल्यू, एक है माइनस वैल्यू और एक है जीरो. माइनस डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब है इट इज गुड फॉर द this is good, this is reaction will be spontaneous. delta G plus का मतलब है reaction will be non spontaneous और delta G zero का मतलब है reaction will be in a equilibrium. तो delta G you can say by measuring the delta G we can measure the spontaneity of the reaction. इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, सब भी हमें पता चलता है. नाउ डेल्टा जी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? डेल्टा H एंड डेल्टा S, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी. तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट वाइज देखा, जे स्पॉन्टेनिटी ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, बस स्पॉन्टेनिटी के लिए हमारा एंथैल्पी भी इम्पोर्टेंट है, एंट्रोपी भी इम्पोर्टेंट है. एंड एंथैल्पी एंड एंट्रोपी में भी कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है? नॉर्मली देखा जाता है जे डेल्टा H अगर नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा, तो दैट इज हमारे लिए फेवरेबल है. अच्छे से समझो, डेल्टा H अगर नेगेटिव होगा तो दिस इज फेवरेबल कंडीशन फॉर अस. एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादातर टाइम, most of the time, I told, not always, most of the time spontaneous. और डेल्टा S अगर पॉजिटिव होगा that is favorable for us.
दैट इज अगर ए अगर प्लस होगा मतलब एंट्रोपी अगर इंक्रीज कर रहा है, दैट इज फेवरेबल फॉर द, आज मतलब फेवरेबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये दोनों चीज ऐसे डिपेंड करते हैं। कोई रिएक्शन में अगर एक्सोथर्मिक है तो मेरे दिमाग में फर्स्ट आएंगे हाँ तो ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे। कोई रिएक्शन में अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है तो उसमें भी हमें पॉजिटिव हो रहा है तो हमारे है ये तो स्पॉन्टेनियस होगा। तो एंट्रोपी बढ़ना व एक्सोथर्मिक होना दोनों ही हमारा स्पॉन्टेनियस सिचुएशन को प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है जे नेगेटिव एंडोथर्मिक, ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है दे आर सभी नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है। इसमें एक्सेप्शनल भी होता है, कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होता है और कुछ रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज करता है वो भी स्पॉन्टेनियस होता है। सो दैट डिपेंड्स ओवरऑल दिस इक्वेशन give us ultimately data whether a reaction will be endothermic or exothermic. Sorry, whether a reaction will be spontaneous or non-spontaneous. तो देखो यहाँ पे देखो अच्छे से अगर एक चीज T delta S factor is very important. अभी आ रही हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज में। अच्छा नाउ एक चीज मैं यहाँ पे देखूंगी, दैट इज वाई डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 इज अ स्पॉन्टेनियस कंडीशन। स्पॉन्टेनिटी के लिए मैंने बोला ना डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, नेगेटिव होना चाहिए। एक क्यू है वाई डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस वन। अच्छे से देखो, we know total entropy is equal to entropy of the system and entropy of the surroundings. ठीक है, if the system in the thermal equilibrium on the equilibrium with the surroundings, then the temperature of the surrounding is same in the system. Naturally temperature जो है temperature is same कहाँ पे है भाई, सिस्टम में भी टेम्परेचर सेम है, सराउंडिंग्स में भी सेम है। ओके, an increase in the enthalpy of the surroundings is equal to the decrease in the enthalpy of the system. अच्छे से समझो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर सिस्टम के अंदर भी जो है बाहर भी सेम है। तो अगर कोई रिएक्शन में अगर सिस्टम अगर हीट छोड़ेंगे तो वो सराउंडिंग्स लेंगे, और सराउंडिंग्स अगर हीट छोड़ेंगे तो सिस्टम्स लेंगे। तो हीट छोड़ना मतलब दैट इज एंथैल्पी। नाउ देयरफॉर एंट्रोपी चेंजेस ऑफ द सराउंडिंग, देखो डेल्टा एच सराउंडिंग्स इज इक्वल टू डेल्टा एच सराउंडिंग्स बाय टी। हमने डेफिनेशन से डेल्टा एच का डेफिनेशन से देखा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय टी। ये अगर सराउंडिंग्स होगा इसका भी सराउंडिंग्स होगा, और सराउंडिंग्स होना मतलब माइनस ऑफ सिस्टम, बिकॉज मैंने क्या बताया था दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है तो सराउंडिंग्स का डिक्रीज करेगा, सराउंडिंग्स का डिक्रीज करेगा तो सिस्टम का इंक्रीज करेगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पॉइंट इन। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर डेल्टा एच जो सराउंडिंग्स का होगा, डेल्टा एच सिस्टम का उसका ऑपोजिट साइन होगा नेचुरली। Now delta S total is equal to delta S system plus, हमने इसको डेल्टा एस कर दिया और इसमें हमने माइनस डेल्टा एस सिस्टम बाई टी, टोटल ए जो एक्सप्रेशन था ना डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, इस इक्वेशन से हमने फिर यहाँ पे आ गए दिस वन। उसमें हमने डेल्टा एस टोटल रखा, डेल्टा सिस्टम को सिस्टम ही रख दिया, और डेल्टा सराउंडिंग्स जो है डेल्टा सराउंडिंग्स जो है इसी को हमने कौन सा टर्म में एक्सप्रेस किया, वो इन द टर्म्स ऑफ सिस्टम। सराउंडिंग्स से हमने सिस्टम के टर्म्स में यहाँ पे हमने एक्सप्रेस किया। तो देखो क्या हुआ अल्टीमेटली, रीअरेंजिंग द इक्वेशन, अगर टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम। सिंपल सा टी से मल्टीप्लाई किया।
For a spontaneous process, Ma'am? S total is always greater than 0. Ma'am, हमें entropy पता के है, बाद अभी से हमने सारा देखा है। था, अगर total greater than 0 होगा तो this is greater than 0 and A greater than 0 होगा तो A भी greater than 0 होगा, तो this means this is also greater than एंट्रोपी से 0. और उसके बाद तो का A जो है greater वो than 0 का सब मतलब इसमें है we can say minus of equilibrium वाला this is greater than 0. अभी हमने क्या किया, इसको रिवर्स करके माइनस करके this is greater than 0. मतलब इस एक्सप्रेशन को मैंने डेल्टा जी के एक्सप्रेशन में लेके आया, हमने देख लिया, बिकॉज हमें पता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा से डेल्टा जी, spontaneity का इसको one of हमने the देखो important इस criteria, से one माइनस of डेल्टा the जी इज important ग्रेटर देन 0. criteria is इसका मतलब क्या है, if the डेल्टा reaction जी is इज exothermic, it will most of the spontaneous time we process observe अगर it is होगा तो हमारा spontaneous डेल्टा जी reaction. शुड बी नेगेटिव. Now, सो इस डेरिवेशन को इसको प्रैक्टिस करना, exothermic and endothermic I have how discussed. we can Next, the confirm thing is that for we a will discuss the spontaneous entropy process. and देखो the spontaneous process spontaneity. में Okay, entropy क्या है? हमने वहां से What लेके is the आया relation एंट्रोपी का between the कॉन्सेप्ट. इसके entropy पहले हमने and, पढ़ा था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी एक बार चेक करो ना रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है. से हमें हो रहा है। टोटल एंट्रोपी इस एंट्रोपी कॉन्सेप्ट एंड द के हेल्प से स्पॉन्टेनिटी, ठीक है. अल्टीमेटली हमने कन्वर्शन लैंग्वेज करके में हमें है पता चला एंट्रोपी क्या है. हमारा एंट्रोपी चेंज ऑफ गिफ्ट फ्री एनर्जी जो है दैट शुड बी ऑलवेज लेस देन. चलो यहाँ Screen सो share डेल्टा नहीं इज तो अल्टीमेटली मैंने सो डेल्टा जी is the net energy available to do some useful work, and so this is measure of the free energy. So for this reason it is also known as free energy of the reaction. So delta G entropy ultimately क्या हो रहा है, which drives the spontaneous process to give a direction. Suppose कुछ reactions हो रहा है, reaction में in which एक्सोथर्मिक है, हीट there is रिजॉल्व होता है, no change in एंडोथर्मिक है, हीट enthalpy, एब्सॉर्ब. but तो जो इस सब टाइप कुछ का करके कुछ argument फ्री हुआ था, एनर्जी होता है, तब रिएक्शन का situation जो को हम केमिकल एनर्जी होता है ना, established किया जो था केमिकल एनर्जी दैट इज delta एक्चुअली H is फ्री equal to एनर्जी zero, which you can then convert still into the another this is a energy. अभी हम spontaneous. देखेंगे Let us ये रेडॉक्स consider the रिएक्शन को diffusion of the अप्लाई two करके उस gases रिएक्शन which are में mixing into one another उनका in जो a closed डेल्टा जी container. है, मतलब In a गिफ्ट एनर्जी वी आर isolated कन्वर्टिंग form, इनटू ठीक है? द Diffusion हो रहा है इलेक्ट्रिकल इसके एनर्जी. two तो gases का कौन सा एनर्जी को वी in आर a closed कन्वर्टिंग इनटू द container, इलेक्ट्रिकल in एनर्जी, a एक्स्ट्रा isolated एनर्जी, form, फ्री एनर्जी जो from the isolated कुछ तो हीट system, दे isolated from the कॉन्सेप्ट surroundings. रिएक्शन तो देखो प्रोसीड हो two रहा है, gas कुछ A and B प्रोड्यूस they हो रहा are है, हीट छोड़ रहा represented by the है, dots. उसी से दोनों कुछ जब एनर्जी रिएक्शन के अंदर ही यूज्ड अप हो रहा है. उसके बाद जो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच रहा है दैट एनर्जी इज द डेल्टा जी, एंड डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगा, स्पॉन्टेनियस जो होगा. मिक्सिंग हो रहा है दोनों अलग अलग था, हमने इसको हटा दिया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन now they में mixed डेल्टा जी जो separated था. So in this case the gases begin to diffuse into each other and after a period the diffusion तो देखो spontaneously mix हुआ, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने just एक partition जो था बाकी उसको जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी withdraw निकल किया के आ रहा है and दैट the इज माइनस diffusion डेल्टा जी will be एंड दैट completed. इज फ्री एनर्जी. तो फ्री एनर्जी जितना ज्यादा क्या निकल होता के है आएंगे दिस एनर्जी वी तो कैन before यूज the फॉर द partition conversion of discuss करने one की जरूरत energy नहीं to है. another energy. Now I am Delta coming G to is the a point. chemical We energy. introduce another thermodynamic माइनस का मतलब function, एनर्जी another रिलीज होगा, thermodynamic तभी तो function, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस entropy, होगा. denoted कोई as S. spontaneous किससे reaction denote का किया मतलब जाता है है S. एनर्जी Okay? रिलीज हो रहा है. This उस एनर्जी को हम means क्या is बोलोगे, disorder. दिस इज नॉट द Simply एंथैल्पी, this दिस इज means द that गिफ्ट फ्री disorder एनर्जी. or chaotic टोटल प्लस situation. माइनस करके तुम जितने देखना एनर्जी एज अ फ्री we एनर्जी prefer निकल रहा the है disorder. which I don't energy know we can मतलब convert into the जैसे suppose another देखो energy, क्लास में अगर and so टीचर्स this ना is called रहेंगे free तो energy बच्चे and it is ऐसे called useful बिल्कुल energy इधर से also. उधर घूम रहा है. So कोई I बैठ think रहा है, कोई उठ रहा है, कोई इस तो बेंच से उस बेंच delta में G जा रहा gives है. the अभी ये criteria कहानी for भी the 2 साल हो गया, spontaneity. नहीं हो रहा है, सही If the बात है. delta G is less than मतलब 0, अभी the लग रहा है reaction जैसे is कहानी हो गया ना, less than 0, it Very is a bad. spontaneous one. जो भी हो If it is a greater than तो 0, then it is a उस टाइम जो non-spontaneous one. एक डिस्टर्बेंस, Okay? एक chaotic Now- situation, disorder रहता है. अगर क्लास में कोई टीचर्स नहीं रहता है तो that you If a can say reaction has a everyone positive enjoy. Enthalpy कौन change student होता है जो उसको positive अच्छा नहीं लगता. entropy change इस जब चीज को मैं teachers अभी आ जाते हैं, डिस्कस सब करूंगी, चलो नेक्स्ट नहीं क्लास बैठ में जाओ डिस्कस अपने करूंगी, अपने आज सीट नहीं में. डिस्कस कभी करूंगी. तुम जे सीट how चेंज करते हो तो फिर नहीं अपनी सीट they में पार्टनर के control साथ बैठो, the तो वो जो temperature, how the obviously you temperature don't like. control the
रिएक्शन। अच्छा डिसऑर्डर्ड बट chaotic situation, मतलब फ्रीडम। यहाँ पे सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ क्या है? तो अगर तुम मॉलिक्यूल को भी छोड़ दोगे, उनको एक जगह पे हमने एक बाउंड्री देके बाइंड करके रखा था। क्या है उसका बाउंड्री हमने हटा दिया ना। मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन अ लार्जर स्पेस, दे आर फ्री टू मूव इन अ बिगर स्पेस, एक्सोथर्मिक दैट फ्रीडम दे विल एंजॉय। अगर सेकंड लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैन मूव फ्रीली विदिन द क्लासरूम, so that freedom they enjoy. So इससे तो freedom बोलो, disorder बोलो, chaotic situation बोलो, these are, but this is one of the important criteria for the spontaneous change. In an exothermic reaction, this chaotic or disorderness that is described by the terms entropy. Overall entropy disorder is positive manifestation of the reaction spontaneous. To form a mental, so delta S total, that means mental surroundings one can think entropy as a measure of, so that is a formula of entropy. Entropy is a measure of the degree of the randomness or disorder in a system. This is the definition of the reaction. Entropy. ठीक है, इतना पढ़ लेना। एंट्रोपी क्या है? मेजर करता है। क्या मेजर करता है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल ये वाला टॉपिक है ना, अभी बोल रहे थे है ना, कितना डिसऑर्डर है। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी हाई होगा। ग्रेटर द डिसऑर्डर हायर विल बी द एंट्रोपी। ये एंट्रोपी सबको समझ में आ गया। अभी मैंने पढ़ा दिया। एज पर केमिकल रिएक्शन इज कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम एंट्रोपी क्यों हम कैसे हमें एक हम ऐसे देखेंगे भी इसमें सीखना पड़ेगा। इन केस ऑफ ऑलरेडी मैंने बता दिया इक्विलिब्रियम में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट बन रहा है इक्विलिब्रियम एंड गिव्स उसमें हम देखेंगे। ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा। एंड लास्ट ये फार्मूला हमारे पास आया कहां पे, मतलब डेल्टा जी इसमें अगर ज्यादा गैसेस होंगे माइनस सपोज तुमने सिंपल सोचो तुमने आइस अगर इक्विलिब्रियम वाटर में कन्वर्ट किया, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी मेजर करेंगे तो उसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का तो एक बार देख लेना। अगर है तो मैं इसको डिस्कस कर लूंगी। ज्यादा होगा डिसऑर्डर के साथ है, अदरवाइज टुमारो आई विल डिस्कस गैसियस फॉर्म में बनेगी, लिक्विड फॉर्म में, बिकॉज़ मॉलिक्यूल्स में फॉर व्हाट कम होगा दे विल बी मूव रैंडमली। डेल्टा जी में भी नेगेटिव एंट्रोपी कहां पे ज्यादा होगा? एंट्रोपी भी अगर तुम कंपेयर करो आइस वाटर एंड गैस, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी हम देखेंगे गैसियस में, मीडियम होगा वाटर में, एंड मिनिमम होगा डेल्टा सॉलिड में, जहां पे पॉजिटिव हो जाए बट डेल्टा एस बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस हो। केमिकल ये तो फिजिकल चेंज में मैंने बताया। केमिकल चेंज में क्या है, व्हिच कैन बी एट्रिब्यूटेड टू द रीअरेंजमेंट ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंपरेचर डिपेंडेंसी, टेंपरेचर हाउ कंट्रोल द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन ये डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर इफ द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला के ऊपर कौन सा फार्मूला डिसऑर्डर एंट्रोपी के फार्मूला दैट ऑफ द रिएक्शन देखेंगे, देन द रिजल्टेंट इस फार्मूला के ऊपर ये वाला सो रिएक्टेंट इम्पोर्टेंट है। हम अगर हम देखेंगे ये हाउ उसमें अगर ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा तो नेगेटिव से एंट्रोपी इंक्रीज किया गया है। द चेंज इन द एंट्रोपी अकम्पनिंग फॉर द स्पॉन्टेनियस में भी कैसे आया है क्वालिटेटिवली। सेकंड लॉ का फार्मूला मैंने बता दिया। सेकंड लॉ ए फार्मूला के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डिक्रीज ऑफ रेगुलरिटी एंट्रोपी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। गिफ्ट अच्छे से देखो डिस्कस करेंगे। इंक्रीज इन द रेगुलरिटी इज आवर सेकंड लॉ जो है सेकंड इन द एंट्रोपी। मैंने कुछ क्वेश्चंस आज नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं कल क्वेश्चन दिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड से जैसे मैं डिस्कस किया क्लास, यहां पे छोटे-छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। अभी मैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन से अभी तुम पढ़ लो, मैं टुमारो आई विल गिव। तुमने लिया था PCl5, PCl5 को तुमने हीट किया। PCl5 वो गैस था बट PCl5 को हीट किया, उन्होंने ब्रेक करके Cl2 एंड PCl3 में कन्वर्ट हुआ। तो देखो वन मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग इनटू द टू मॉलिक्यूल्स। ए भी गैसेस से, PCl5 भी गैसेस से, गैसेस फॉर्म में लिया था, और हमारा PCl3 एंड प्रोडक्ट जो है एंड Cl2 क्लोरीन एंड PCl3 दोनों ही गैसेस है।
तो कहाँ पे रैंडमनेस बढ़ेगा? नेचुरली अगर वन मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो उनका डबल रैंडमनेस बढ़ जाएगा. सो दिस विल बी in this we can say yes, the entropy has been increased. So entropy I think तुम्हें समझ में आ गया. One way to calculate the entropy, the calculate the degree of the disorder or chaotic distribution of energy. सर मैंने कंबाइंड ग्रुप पे लिंक भेज दिया है, बच्चे ज्वाइन करते ही होंगे. थ्रू द स्टैटिस्टिकल मेथड, वो तो होता ही है, स्टैटिस्टिकल मेथड से हम लिंक का कोई फायदा नहीं हो रहा. कंप्यूटर से ज्वाइन करने पे कैसे हम करेंगे? आ रही है द प्रोसेस टू द हीट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस which would bring the entropy in a thermodynamic concept. ठीक है, ठीक. अगर उपासना को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना. जैसे प्लेग्राउंड में इतने लोग हैं, उसका प्रोबेबिलिटी करके तुम बता सकते हो. इसमें सपोज मैच शुरू होने से पहले सब लोग घूम रहा है, बैठ रहा है, उसमें एक प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमनेस क्या होगा? मैच खत्म हो गया, उसके बाद जब लोग मूव करके निकल रहे हैं प्लेग्राउंड से, उस टाइम क्या है रैंडमनेस? मैं भी आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में फाइंड. बट रिएक्शन में हम क्या करेंगे? हमें पता है जितना ज्यादा हीट होगा, मैंने अभी कर लिया, जितना ज्यादा हीट सप्लाई किया जाएगा मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा बढ़ेंगे, उतना उनका मूवमेंट बढ़ेगा, उतना उनका एंट्रोपी बढ़ेंगे. सो हीट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस वुड मेक अ एंट्रोपी इन अ थर्मोडायनामिक कांसेप्ट. सो थर्मोडायनामिक कांसेप्ट में के साथ रिलेशन है एंट्रोपी का. एंट्रोपी लाइक एनी अदर थर्मोडायनामिक कांसेप्ट सच एज इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन. सो एंट्रोपी अभी हमने और एक स्टेट फंक्शन हमें मिला है, दैट इज अ एंट्रोपी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ. जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने कुछ रिट्रीवल क्यूज डेवलप करते हैं. नेक्स्ट इज ऐसे देखो, जिससे कि हमें हीट इज एडेड टू द सिस्टम if the increases molecular motion, जो अभी मैंने डिस्कस किया, causing the increase the randomness naturally, then in the system the Q is randomizing the influence of the system. Naturally कि तुम हीट सप्लाई कर रहे हो, मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, उसका मूवमेंट बढ़ रहा है, उसका रैंडमनेस बढ़ रहा है, उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है. इसमें सबसे पहला है निमोनिक. रैंडमाइजिंग के लिए हीट हैज अ रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस. So now we are coming a system at a higher temperature. अच्छे से देखो, मैंने जहाँ पे बुक पे मार्क कर रही हूँ, हो सके तो मार्क कर लेना, क्योंकि क्या होता है बाद में जब तुम पढ़ते हो ना, तुम्हारा बुक में कोई मार्क वर्क नहीं होता इंफॉर्मेशन के साथ, तो तुम्हें उसी पार्ट में कौन सा लाइन इम्पोर्टेंट है, कौन सा लाइन हाईलाइटेड है, कौन सा लाइन को हमें ज्यादा फोकस करना है, तुम्हें नहीं पता. फिर जब तुम पढ़ते शुरू करते हो एक टॉपिक को, ऐसे पढ़ते हो, फिर तो हाईलाइटेड होने से उसी जगह पे आंखें जाता है. अगर हमें पेटो को लर्न करना है, तो एक टॉपिक को क्विकली कवर कर सकते हो. डकी समझ में आए तो मैं क्या करूंगा? A system at a higher temperature has greater randomness naturally, and then the lower temperature. So temperature is a measure. So temperature is a measure of the average chaotic motion of the particles in the system. तो अभी उसी के हिसाब से अभी हम देखेंगे कैसे एंट्रोपी को वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. या मैं उसको जब इमेजिन करूंगा तो मुझे डक याद आएगी. टू द सिस्टम at a lower temperature causes greater randomness the meaning of that particular when the word, same quantity of is added at the higher temperature. इस वाला सब जिसका समझ में आया है, तुमने कुछ हीट को सप्लाई किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड. Apart from that, there is a second ठीक है, तो सपोज कोई एक सिस्टम ऑलरेडी 40 डिग्री सेल्सियस में थे, तुमने उसमें कुछ हीट सप्लाई किया, और कोई एक सिस्टम 70 डिग्री सेल्सियस में थे, उसमें भी तुमने सेम हीट अप्लाई किया है. तो तुम बताओ कहाँ पे तुम्हारा रैंडमनेस बढ़ेंगे ज्यादा? In the form of visual image. कहने का मतलब ये है, एक दो सिस्टम है, एक में ऑलरेडी 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, एक में 70 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है. तुमने दोनों जगह पे 500 किलोजूल 500 किलोजूल हीट को सप्लाई किया है. Where the randomness will be more. लोकेशन आपने डिटरमाइन की हुई है कि भाई मुझे अगर ये चीज चाहिए तो मैं यहाँ जाऊँ. हम 70 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे टेम्परेचर, पर इसको मैं 70 डिग्री मेमोरी से कैसे क्यों 70 डिग्री में क्यों होगा?
This method is particularly helpful in remembering items in a serial order. Chaotic motion बढ़ जाता It requires that you first visualize object or place that you know well in a Heat is specific added sequence. to a system Imagine at a the lower object you temperature want to remember causes a and greater associate them randomness one by than one when a to the same physical quantity location. is added to a ये बात higher ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लर्न करना चाह रहे हो कि मुझे वहां This पे क्या suggests रखा हो, that entropy तुम बस उसकी changes जो in लोकेशन है उसको याद inverse कर लो proportional कि to भाई the इस लोकेशन पे क्या क्या चीजें temperature. रखी। This is the relation. जैसे कि Temperature is a measure of the suppose you average want to measure, but remember temperature bread, कैसे measure eggs, करा ये अच्छे से tomato, देखो. soap This is very on your way important to the thing. market. तुम्हारे You पास may दो visualize सिस्टम a है, एक loaf में of 40 bread डिग्री से 70 and डिग्री, eggs तुमने दोनों में सेम placed in हीट your किया kitchen. है. मतलब तुमने क्या किया इम्प्रूवमेंट यार जो किचन में होगा जिस चीज की जरूरत थी, अच्छा ज्यादा हम ब्रेड जो की, इम्प्रूवमेंट देखेंगे फ्रिज में वो क्या क्या नहीं लोअर था, लोअर तो मैं क्या कर रहा टेम्परेचर हूँ में जो उसको मॉलिक्यूल्स था ना विजुलाइज करने की उसका कोशिश कर रहा स्पीड हूँ कि कम फ्रिज था, में किस किस चीज उसका की स्पीड रिक्वायरमेंट है, वो सेम किचन अमाउंट में ऑफ एनर्जी किस लेके किस चीज की रिक्वायरमेंट उनका है। मूवमेंट अगर ज्यादा मैं दिखेगा डिश rather डिश than वॉश जो ऑलरेडी बार हायर की बात कर रहा टेम्परेचर हूँ, में सोप था. की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सो या इसीलिए फिर देखो दिस मुझे इज वेरी फूड चाहिए, इंपॉर्टेंट और फूड में भी यार ब्रेकफास्ट में सुबह कहा सुबह क्या है चाहिए होता है, that entropy लंच में क्या क्या चाहिए होता है, उसके changes लिए क्या लेके जाऊँ, is या फिर inversely किचन में proportional वहां पे क्या क्या to चीज the होती है, क्या वहां पे थी। temperature. हाँ ये बात जरूरी है कि So जाने से now पहले what देखना is the पड़ेगा कि क्या relation? क्या नहीं है, Relation तभी तो देखो आप वहां अच्छे पे जाके से, उसको इमेजिन कर delta पाओगे Q कि is भाई किचन equal में to ये चीज Q नहीं थी, वहां पे ये reversible नहीं, by तो T. मुझे ये लेना है। तो एक Now, स्पेसिफिक tomatoes टेम्परेचर में kept on अगर a हम table टेम्परेचर को and फिक्स soaked रखेंगे in the bathroom. तो उसमें When कितना you हीट enter the हमने market, सप्लाई all you किया need to do is to that take is a mental walk along the route from your kitchen proportional to the in change the of the bathroom, entropy. The recording all total the entropy items of change your for the shopping list in system a sequence. and the तो surroundings शॉपिंग लिस्ट की of a बजाय तुम क्या करोगे, spontaneous वहां पे खड़े process होगे is उसको अपने given by बाथरूम S के total या क्या किचन होगा, के या सिस्टम में लिविंग रूम के कितना बारे में एंट्रोपी सोचोगे है कि वहां पे एंड यही लेना है सराउंडिंग्स में कितना और एंट्रोपी है, ये चीज दोनों वहां पे मिला के नहीं ही है। होगा टोटल एंट्रोपी. ठीक, And this इसको बोलते हैं entropy मेथड ऑफ लॉकी। is greater अब अगर than मेथड ऑफ लॉकी 0. को तुम अपने When a एजुकेशन में system is स्टडीज in में अप्लाई करना चाहो equilibrium, तो कैसे कर the सकते हो, entropy is दैट इज आल्सो maximum क्वेश्चन। and the changes of अगर the तुम्हारे पास entropy क्वेश्चन is का 0. आंसर है Naturally तो अच्छी system बात है, तुम्हारे 0 पास होगा नहीं है तो तुम मुझसे पूछ लेना बाद में, when a बट अभी तुम system सोचो is इसके in बारे में कि equilibrium मैं कैसे and the कीवर्ड entropy मेथड और is मेथड ऑफ लॉकी को maximum and अपने the change लेवल of पे यूज entropy कर दोनों सकता हूँ, मैं कर अलग सकता वर्ड हूँ। है. ठीक, Entropy change of देन वी हैव निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन। निमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन, जब हम एक अवेलेबल स्टिमुलस को या अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं मीनिंगफुल मैनर में। मीनिंगफुल मैनर मतलब जो मेरे लिए मीनिंगफुल हो, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक, नाउ ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू इम्पोजिंग सर्टेन ऑर्डर ऑन द मटेरियल you want to remember. Mnemonics of this kind are helpful because of the framework you create, while organization makes the retrieval task fairly easy. जब आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो ना चीजों को तो आपका रिट्रीवल बहुत इजी हो जाता है। माइंड है क्या, पहले तुम ये समझो, माइंड क्या है? माइंड इज लाइक स्पेस जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तुमने एक इंफॉर्मेशन को लिया, जब तक आप उस इंफॉर्मेशन का एक कंट्रोल नहीं रखेंगे वो आपके ऑर्बिट से निकल जाएगी। ध्यान से समझना, अगर आपने अपनी उस इंफॉर्मेशन को जिसको रिसीव किया है उसका एक प्रॉपर क्यू नहीं बनाया ना तो वो आपके ऑर्बिट से निकल जाएगी और कहीं स्पेस में खो जाएगी। स्पेस का मतलब तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड, राइट। अब ये काम कैसे करता है, ये तो खैर बहुत ज्यादा डिटेल में बात होगी, बहुत ज्यादा गहरी होगी, ये तो तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा स्पेस में चले जाओगे। अच्छा, फर्स्ट वन इज चंकिंग। चंकिंग आप पढ़ चुके हो, बड़ी इंफॉर्मेशन को या एक लार्ज इंफॉर्मेशन को कुछ छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेना और फिर छोटे क्लस्टर्स को एक मीनिंग दे देना। जैसे कि आपने 1947, 1949 और 2004 आपने जो नंबर था वो पढ़ा था, तो इनकी क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में या हमारे लिए जो हमने पढ़ा है, उसको आपने एसोसिएट कर लिया और ये नंबर आपको याद रह गए। ठीक, नाउ चंकिंग। While describing the features of STM, we noted how chunking can increase the capacity of short-term memory. In chunking, several smaller units are combined to form large chunks. For creating chunks, it is important to discover some organization principles which can link smaller units. Therefore, apart from being a control mechanism to increase the capacity of STM, चंकिंग कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव मेमोरी एज वेल। तो आपने जब एसटीएम को पढ़ा था ना
वो इस बारे में पढ़ा था कि हम STM की जो कैपेसिटी है वो कैसे एनहांस कर सकते हैं। बट इन एडिशन टू दैट यू कैन ऑल्सो लर्न इट एज अ मेमोरी एनहांसर या मेमोरी एनहांसिंग टेक्निक, राइट। नाउ वी हैव अ सेकंड टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड फर्स्ट लेटर टेक्निक। जब आप चीजों के फर्स्ट लेटर्स को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में कंबाइन करने की कोशिश करते हो। आपकी बुक में एग्जांपल है विबग्योर का, UPSC, ITBP, CISF या SBI, है ना, और तुम्हारा स्कूल UPS, ठीक। तो ये सब क्या है? ये फर्स्ट लेटर टेक्निक है, जहां पे हमें एक बड़ी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए, मतलब उसको बताने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता और हम सिर्फ फर्स्ट लेटर ही बोल देते हैं, ठीक। So first letter technique. In order to employ the first letter technique, you need to pick up the first letter of each word you want to remember and arrange them to form another word or a sentence. For example, colors of a rainbow are remembered in this way. जैसे कि विबग्योर के बारे में लिखा हुआ है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अच्छा, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। कल या परसों आपका एक वेटलैंड से रिलेटेड आपका क्विज हुआ था, ठीक। तो वेटलैंड या नेशनल फॉरेस्ट, बर्ड सेंचुरीज या फिर जू या फिर जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन हमारी जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं और हमें एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उसके लिए एग्जाम देना है, तो इन एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो इनकी प्रिपरेशन के लिए आपको यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको फर्स्ट लेटर मेथड, चंकिंग, कीवर्ड मेथड और कहीं ना कहीं आपको मेथड ऑफ लॉकिंग अप्लाई होता हुआ नजर आ जाएगा। तो मैं एक दो वीडियो आपको भेजूंगा ताकि आप उसके एप्लीकेशन को समझ पाओ और उसको आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लेवल पे भी अप्लाई कर सको। भाई फॉर एग्जांपल, तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम लीगल स्टडीज पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, है ना, या फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो क्या उसके अंदर ये चीजें अप्लाई हो सकती हैं? उसको आप तब देखोगे, तब देख पाओगे जब आप एक बार वीडियो को देख लो, इन वीडियोस को, कि हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारी बुक में तो एक एक एग्जांपल दिया हुआ है ना, विबग्योर का, या फिर मेथड ऑफ लॉकी के लिए हमारे ये क्या नाम है, किचन का एग्जांपल ले लिया। पर अब तुम एक बात सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैंने तुम्हें इंडिया का मैप दे दिया, अब इंडिया का मैप दे दिया और मैंने बोला कि भाई तुम्हें जो है 7 याद करने हैं, वो कौन सा होता है? वो न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिमेम्बरिंग द नेम, सबसे पहले ये याद रख लो कि मैप पे कहाँ लोकेशन इन सातों की, लोकेशन याद कर लो, फिर आराम से नाम भी याद हो जाए, ठीक है। मैंने किया है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। निमोनिक स्ट्रेटजीज फॉर मेमोरी एनहांसमेंट आर टू सिंपलिस्टिक and perhaps underestimate complexities of memory tasks and difficulties people experience while memorizing. In place of mnemonics, a more comprehensive approach to memory improvement has been suggested by many psychologists. In such an approach, emphasis is laid on applying knowledge about memory processes to the task of memory improvement. अब ये बात ये करें कि जो भी memory processes हैं आपके, आप उनका कैसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे एंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग। तुम्हें पता है डीप लेवल प्रोसेसिंग की बात किसने की है? क्रेक एंड लॉकहार्ट ने। और वो क्या बात करते हैं कि भाई पहले किसी चीज के जो स्ट्रक्चर है उसको देख लो और उससे स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो साउंड है या जैसा वो सुनने में लगता है, इन दोनों को कंबाइन कर दो और जब इनका कॉम्बिनेशन होगा वो डीप लेवल प्रोसेसिंग कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। इफ यू वांट टू मेमोराइज एनी इंफॉर्मेशन वेल, एंगेज इन डीप लेवल प्रोसेसिंग। क्रेक एंड लॉकहार्ट have demonstrated that processing information in terms of meaning that they convey leads to better memory as compared to attending to their surface features. Deep processing would involve asking as many questions related to the information as possible, considering its meaning and examining its relationship to the facts you already know. तो मैं तुम्हें बुक पढ़ाने के साथ साथ हिंदी में भी बता रहा हूँ और कभी कभी एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट कराना है, नहीं भाई, मुझे ये भी तो जानना है ना कि बुक में जो लिखा है उसे तुम कितना समझ रहे हो। क्योंकि जो तुम समझोगे फिर तुम उसी को तो अप्लाई करोगे। अब बुक में जो लिखा है वो तो लिखा है ही, वो तो पिछले 10 साल से लोग पढ़ भी रहे हैं और पेपर में लिख भी रहे हैं।
पर उसके अलावा जब आपने कोई चीज पढ़ी, जब आप अपने एग्जाम्पल दोगे तब तो मजा आएगा ना मुझे भी पेपर चेक करने में। वरना तो ये किचन का एग्जाम्पल पिछले 10 साल से लोग लिख रहे होंगे, 15 साल से, या जब से बुक में तब से, तो इंसान बोर हो गया हुआ, यार ये आ गया मेथड ऑफ लो कि इसमें किचन होगा, चला गया। पर अगर तुम इसमें इंडिया का मैप लिखो, मतलब इंडिया का मैप वाला एग्जाम्पल दो और बताओ कि मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है या फिर एटॉमिक पावर जनरेशन के जो सेंटर्स हैं मुझे वो लर्न करने, तो मैं इंडिया के मैप के लोकेशन का अकॉर्डिंग याद कर लूंगा। या फिर जो इंडिया में वेटलैंड्स हैं, या फिर इंडिया में मतलब जो भी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो मैं मैप के लोकेशन के हिसाब से लर्न कर लूंगा। बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट लेटर टेक्निक में विबग्योर हमेशा से लिखा होगा बच्चों ने। तुम कुछ और ट्राई करना, तुम यूपीएससी लिखना, या वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल वो लिखना। क्यों? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बी, मिनिमाइज इंटरफेरेंस। अब तुमने फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस पढ़ा, क्योंकि जब इंटरफेरेंस होती है ना हमारे रिट्रीवल क्यूज में, तब हम भूल जाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम इस इंटरफेरेंस को मिनिमाइज कर पाए। इंटरफेरेंस मिनिमाइज होगी कैसे? ये बहुत ही क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि सबके लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम होती है ना, ये सबके अलग अलग कंडीशन है। आगे देख लेते हैं कैसी कौन सी बात कर रहा है। इंटरफेरेंस एज वी हैव रेड इज अ मेजर कॉज ऑफ फॉरगेटिंग and therefore you should try to avoid it as much as possible. You know that maximum interference is caused when very similar materials are learned in a sequence. जब आप कुछ सिमिलर मटेरियल्स को एक सीक्वेंस में लर्न करते हो ना, तब प्रॉब्लम आती है। ठीक, अवॉइड दिस एंड अरेंज योर स्टडी इन सच अ वे दैट यू डू नॉट लर्न सिमिलर सब्जेक्ट्स वन आफ्टर द अदर। तुम ऐसा भी कर सकते हो कि भी सिमिलर सब्जेक्ट्स को एक के बाद एक ना पढ़ा जाए, या फिर instead pick up some other subject unrelated to the previous one. If that is not possible, distribute your learning or practice. तुम अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो कि भाई इतनी देर पढ़ के मुझे अपने दिमाग को थोड़ी शांति देनी है, 10 मिनट या 15 मिनट, ताकि जो मैंने पढ़ा है मैं उसको रिवाइज कर पाऊँ मेंटली। अगर मैंने ये पढ़ा है कि मैं 1975 में इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई, देन व्हाट वर द इश्यूज, और उस टाइम पे बिहार और गुजरात में प्रॉब्लम क्या चल रही थी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को ये कदम स्टेप्स लेने पड़े। तो पढ़ने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसको थोड़ा सा इमेजिन करूंगा, तब तो याद होगा। वरना अभी तो मैंने पढ़ा 1975 का इंदिरा गांधी, फिर 1989 के 79 के क्या नाम है इलेक्शंस, फिर मैं दोबारा से 1984 में जब इंदिरा गांधी की जाती फिर वो पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा, दिमाग में केओस हो जाएगा। ईदर गिव सम टाइम योरसेल्फ, और अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे, दिस मीन्स गिविंग योरसेल्फ इंटरमिटेंट रेस्ट पीरियड्स व्हाइल स्टडीइंग टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस। राइट, अब आगे आ जाओ, ये है लास्ट पॉइंट। गिव योरसेल्फ इनफ रिट्रीवल क्यूज। रिट्रीवल क्यूज देना बहुत जरूरी है, इनफ रिट्रीवल क्यूज दो। मतलब अगर तुम्हारी सैटेलाइट तुम्हारे ऑर्बिट में घूम रही है तो उसका सिर्फ एक मैकेनिज्म मत रखो, कम से कम 3 से 4 मैकेनिज्म रखो, कि अगर एक से सिग्नल टूट भी जाए तो 2-3 से रहे और वो कहीं और ना चली जाए। कैसे, वापस आते हैं। While you learn something, think of retrieval cues inherent in your study material. Identify them and link parts of the study material to their cues. These cues will be easier to remember compared to the entire content, and the links you have created between cues and the content will facilitate the retrieval process. तुम क्यूज के और पूरे कंटेंट के बीच में रिलेशनशिप बनाओगे कैसे? क्वेश्चन तो ये है। ये तो इन्होंने तो बोल दिया कि भाई क्यू और कंटेंट के बीच में रिलेशनशिप बना लो तो रिट्रीवल क्यूज आराम से हो जाएगा, पर बनाओगे कैसे, वो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है ये आपको सोचना है, इसमें नहीं है, तुम्हें सोचना है। थॉमस एंड रॉबिन्सन हैव डेवलप्ड अनदर स्ट्रेटजी to help students in remembering more, which they called method of PQRST. अब इन्होंने कौन सा मेथड दिया है, नाम ध्यान रखना है, थॉमस एंड रॉबिन्सन। मैं पेपर में ऐसी उटपटांग चीजें पूछता हूँ जो मतलब जहां पे किसी इंसान ने कुछ अलग काम किया। ठीक है, अभी थॉमस एंड रॉबिन्सन है, इन्होंने अलग से क्या चीजें दी जिसका इन्होंने लिखा है PQRST। अभी PQRST क्या है? P stands for preview, question, read, सेल्फ रिसाइटेशन एंड टेस्ट। और जो आप स्टडी हैबिट इन्वेंटरी वाला टेस्ट कर रहे हो ना,
उसके अंदर इस चीज को अप्लाई होते हुए देखोगे। अगर आप इन चीजों को अप्लाई करोगे तो आपकी स्टडी हैबिट इंप्रूव हो सकती है। तुम इसे कंक्लूजन में भी लिख सकते हो चाहो तो। अगर किसी की स्टडी, देखो ध्यान से समझना, अगर किसी की स्टडी हैबिट पुअर आ रही है आपके इंटरप्रिटेशन में और तुम्हें कंक्लूजन लिखना है, तो तुम उसको क्या बताओगे कंक्लूजन में कि भाई कैसे वो अपनी स्टडी हैबिट्स को इंप्रूव कर सकता है। तो आप वहां पे PQRST वाला फॉर्मूला भी डाल सकते हो, पर वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। P मतलब प्रीव्यू, विच इज प्रीव्यू रेफर्स टू गिविंग अ cursory लुक एट द चैप्टर एंड फैमिलियराइजिंग oneself with its content। मतलब क्या है, पहले पूरे चैप्टर को देख लो कि ह्यूमन मेमोरी में एक्चुअल में है क्या और मैं कितना जानता हूँ। या फिर अगर ये बात कर रहा है प्लांट एनाटॉमी की, तो प्लांट के बारे में मैं क्या जानता हूँ। मैंने दुनिया में या जीवन जहान में कभी असल में प्लांट देखे हैं? प्लांट अगर मैंने देखे हैं तो कितने टाइप के देखे हैं? कोई श्रब्स हैं, कोई हर्ब्स हैं, या फिर क्रीपर्स हैं या क्लाइंबर्स हैं? किस टाइप के प्लांट है और उनकी एनाटॉमी के बारे में क्या है? क्या उनमें कुछ डिफरेंस है? क्या उसमें कुछ डिफरेंस मैंने खुद कभी एक्सपीरियंस किया है? तो प्रीव्यू, एक चैप्टर को मैं प्रीव्यू करूंगा। देन क्वेश्चन मींस रेजिंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग आंसर्स फ्रॉम द लेसन। पहले क्वेश्चन जनरेट करने पड़ेंगे कि अगर मैं बात कर रहा हूं, तुम भी कुछ बताओ अच्छा टॉपिक। चलो ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि लर्निंग के बारे में, ये चैप्टर लर्निंग की बात कर रहा है, या लर्निंग के बारे में मैं क्या जानता हूँ, और क्या सिर्फ खाना खाना या पढ़ना सीखना सिर्फ यही लर्निंग है, या फिर जो मैंने बुक से पढ़ लिया और मैंने क्लास में जाके बोल दिया, क्या वही लर्निंग होगी? इसके अलावा भी कुछ होगा? और मैं तो ऐसे लर्न करता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है वो दूसरे तरीके से लर्न करता है, तो क्या वाकई में लर्निंग में कुछ डिफरेंस है? सो रेज सर्टेन क्वेश्चंस ताकि इन क्वेश्चन का तुम्हें जवाब मिले व्हेन यू आर रीडिंग। इससे इंटरेस्ट भी बना रहेगा। आगे चलते हैं। नाउ स्टार्ट रीडिंग एंड लुक फॉर आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव रेज्ड। आफ्टर रीडिंग ट्राई टू रीराइट व्हाट यू हैव रेड एंड एट द एंड टेस्ट हाउ मच यू हैव बीन एबल टू। तो जब आप पढ़ के खत्म करो चैप्टर को, कुछ लिख लो एटलीस्ट मेक सम पॉइंट्स। जैसे यहाँ पे लिखा है ना समरी में पूरा चैप्टर तो दे नहीं रखा, पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। इन्होंने क्या लिखा है, मेमोरी क्या है, मेमोरी की कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से मॉडल्स हमने पढ़े हैं, किन किन लोगों का एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। चाहे आप शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात कर लो, वर्किंग मेमोरी की जहां बैडली ने अपना काम किया है, चाहे लॉन्ग टर्म मेमोरी जहां टूलविंग की बात आती है, ठीक। या फिर मॉडल्स में क्या क्या मॉडल्स आपने पढ़े हैं। तो हमने क्या किया, रीराइट इन सर्टेन पॉइंट्स व्हाट आई हैव रेड, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, देन टेस्ट योरसेल्फ कि मैंने कितना जाना। इस तरीके से PQRST का इस्तेमाल करके आप अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हो। बस यही था इस चैप्टर में। बोलो क्या करना है। एक खुशखबरी है, खुशखबरी ये कि तुम्हारा थियोरेटिकल पोर्शन टेक्निक को फर्स्ट लेटर टेक्निक में इंक्लूड कर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो सर? हम PQRST वाली टेक्निक को हम फर्स्ट लेटर टेक्निक में इंक्लूड कर सकते हैं ना, वो विबग्योर वाली? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो कि इन्होंने फर्स्ट लेटर टेक्निक का ही इस्तेमाल करके PQRST टेक्निक बिल्कुल कर सकते हो। तुम बस एक सेकंड रुक जाओ और तुम अपने दिमाग में ना थोड़े से कुछ कुछ रोटेट करो अपने दिमाग को कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए। तब तक मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ। यहाँ पे 28 स्टूडेंट्स, और ऐसी कोई टेक्निकल ग्लिच दोबारा ना आए तो मैं ऐसा कुछ करूंगा। ओहो क्या हो गया, ओहो शाम को इसके बारे में सोचूंगा। तो में से अगर किसी की वैक्सीन रह रही है तो लगवा लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सेकेंड डोज लगवाने। हाँ अभी तक लगवानी, मैं तुम लोग पेपर चेक करा बता दूंगा फाइनली। हाँ बोलो भाई, किसी को पूछना तो पूछ।